I think you have a proper interaction with the Shreyan sir. I'm meeting first time to you actually. हाँ, ये थोड़ा दुख भी होता है, अक्सर इन लोगों से शेयर भी करते रहते हो सर, ऑनलाइन वालों बच्चों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, ऑफलाइन की दुनिया में ज़्यादा बिजी रह जाते हैं। तो सबसे पहली बात कि लाइक कैसे स्टार्ट हुआ, लाइक ऑब्वियसली जैसे कि अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर एंड ऑब्वियसली 2021 में फर्स्ट टाइम अनाउंस हुआ कि नाउ गर्ल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस, तो कैसे ये एक आया, लाइक ये पहले से था या फिर अपॉर्चुनिटी आई तो यू जस्ट स्टार्टेड? सर पहले तो कभी सोचा ही नहीं था कि लाइक एसएसबी नामक कोई प्रोसेस इतना डायनेमिक चल रहा है लाइक कंट्री में। पर जब पिछले ईयर सितंबर में अगस्त में जब रिलीज हुआ था कि एनडीए गर्ल्स के लिए ओपन है, तब थोड़ी हलचल पता लगी थी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी भी कुछ है, क्योंकि मेरे जो नाना है वो सिपाही थे, तो वही से पता लगा था कि आर्मी में है। तो हमारे फैमिली में आज तक कोई ऑफिसर रैंक के लिए तो भरा ही नहीं था, ना किसी ने एसएसबी दिया था। So I went for like I applied. I was not very serious for the first attempt. I just applied कि try करते हैं, why not? Because तब college start नहीं हुआ था, so I gave simply like the NDA one. जो मेरा first attempt था, that was the second 2021 वाला NDA on 14th November. So I gave that and I got cleared, and then my SSB was in Allahabad. And when I got conference out, that was the time when I realized like this is what I wanted. Like I got such a big pushback कि what I did in 5 days was completely disastrous. So I started to learn more about कि ND का daily routine क्या है, will I able to manage or not. And तब से I think army has been my first priority, and that motivation, that confidence allowed me to get recommended. मैं That's very nice. Then finally फिर आपने अप्रैल अटेम्प्ट में जो है खुद को अपीयर किया? Yes sir. Okay, so what was the date for the SSB? So for the second one, it was 27th August to 31st August. Okay, that's nice. इस बार कौन सा? भोपाल बोर्ड, I think you just went for the Bhopal board. Yes, Bhopal. Okay. तो how was the journey at Bhopal board? थोड़ा बताएं, throughout screening part कैसा रहा, psychology सारी चीजें ब्रीफ करें. Okay sir. So वही 6 बजे की रिपोर्टिंग थी, and at the Bhopal military station they had made like they had asked कि रिपीटर्स एक तरफ हो जाओ, फ्रेशर्स एक तरफ हो जाओ, तो दैट क्रिएटेड अलग वाला स्ट्रेस, बिकॉज रिपीटर्स की लाइन काफी लंबी हो गई थी एंड फ्रेशर्स वर लाइक 10 ओनली. सो आउट ऑफ आई गेस 50-60 ओनली 38 रिपोर्टेड. एंड फिर वही स्क्रीनिंग का प्रोसेस, 2 सेट्स वर गिवन फॉर OIR, एंड OIR में अलग चीज हुई थी, लाइक सर सेट की 5 मिनट्स बचे हैं, बट एक्चुअली में 1 मिनट बाद ही सर ने कहा टाइम अप, तो दैट उसकी वजह से काफी क्वेश्चंस छूट गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि हो ही नहीं पाएंगे स्क्रीनिंग, बिकॉज OIR इज इवेंचुअली क्रूशियल फॉर योर स्क्रीनिंग. फिर पीपीडीटी हुआ. पीपीडीटी में भी द ग्रुप दैट वाज क्रिएटेड वो रिपीटर्स का अलग था एंड फ्रेशर्स का अलग था. तो रिपीटर्स में तो सभी बोले जा रहे थे, so the group was divided into 2 parts and then we had to come at a common story didn't end up coming, and तो फिर final भी no one could narrate that. Okay. And then we were sent for our like lunch, and then the result had been announced, and it was very historic because 100% screened it. Out of 38 all screened it. Actually so, reporting ही कम हो गई थी, तो obviously उन्हें maximum तो लेना ही था, right? Yes sir. So we were like very happy, तो सभी screen in हो गए. तो उस दिन तो entire like 6 बजे तक they made us fill forms and PIQ वगैरह, and the next day there was psychology. वही सुबह 6 बजे का time psychology का. So first like they took a photograph of us, and then 7:30 our psychology had started, and the first test is obviously TAT. उसमें usually what they say is कि blurry stories आती हैं, and but हमारा जो set था उसमें I would say कि 2-3 ही blurry आई थी, बाकी everything was like very clear, जो PPDT में जैसी stories होती हैं. So I could write very easily all the stories, 11 stories and 1 blank one. And then the next test is of VAT. I could attempt all 60 VAT. Like the words were pretty common कि जो आप practice करते हो, so I could do that. And SRT में भी I had aimed कि मैं 45 तो कर ही लूँ, but I could do only 42 कि अच्छे से full length answers I could write and complete ending दे सकूँ. And SD obviously I had prepared, so I had not like learned the entire SD. I had kept certain key points in mind, and then I had framed my own sentences. तो psychology भी हो गया था उस दिन. Okay, now my question actually.
ऑब्वियसली एक जर्नी आपने जी हुई है, बट स्क्रीनिंग राउंड से सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा बनता है वही बनता है कि लाइक 38 थे जैसा कि आपने कहा कि कितने का आपका ग्रुप था, लाइक व्हेन यू पार्टिसिपेटेड फॉर द पीपीटीटी राउंड, तो कितने मेंबर्स थे आपके ग्रुप में? So 11. ओके तो सबसे अहम क्या रहा इस बार एक्सपीरियंस, डिफरेंट कैसा? बिकॉज जैसे आपने कहा कि सारे के ही सारे स्क्रीनिंग हुई, तो अपने आप में हिस्टोरिक चीज़ तो है, क्योंकि ऐसा सुनने को मिलता नहीं अमूमन एग्जैक्टली। तो क्या ऐसी खास बात आप उनको 11 में दिखाई दी? लाइक एक नरेशन पार्ट है, स्टोरी राइटिंग पार्ट है, फिर आपका डिस्कशन पार्ट है, तो क्या चीज़ ऐसी दिख रही थी कि वाकई में ये 11 के 11 डिजर्व करते हैं? क्योंकि नरेशन और डिस्कशन दो चीज़ें थी, अक्सर फिश मार्केट हो जाती है और सारे के सारे जैसे आपने बोले कि एक्सपीरियंस थे, तो क्या माहौल था? थोड़ा मेरे को ब्रीफ करें उसके बारे में। पहले तो स्टोरी लिखी सबने, तो वी वर सिटिंग आउटसाइड और रिपीटर्स का बैच था, क्योंकि सो वी वर केप्ट एट लास्ट कि तुम्हारा लास्ट है जाने के लिए फॉर डिस्कशन। सो व्हेन वी वेंट इनसाइड एवरीवन नरेटेड, एक तो स्टोरी वेरी कॉन्फिडेंटली, आई कांट से कि एक भी बंदे ने didn't narrate it confidently without hesitation within time of 45 to 60 seconds. They all narrated very well. And when discussion started, fish market, there was full fish market. कोई ऐसा नहीं था कि चुप रहे, सबको बोलना था उस टाइम, बिकॉज रिपीटर बैच है, तो फिर सबको, everyone had gone through that process, तो सबको ही बोलना था उसमें. So there was a fish market. So sir divided the group into two parts. So the first part in which I was there, everyone was speaking, but at least जब group divide हुए, there was a chance कि like बात at least for 10 seconds you could speak. Right. Yes sir. And फिर जब common story आई, फिर वही fish market बन गई. So sir, the assessors got annoyed and they stopped us and they said you may go. So we couldn't narrate the common story. ओके साइकोलॉजी पार्ट में जैसे आपने बताया कि 11 पिक्चर थे, देन वन मोर ब्लैंक पिक्चर, तो ब्लैंक पिक्चर आपकी क्या थी एंड व्हाट वाज द स्टोरी एक्चुअली? I had like already prepared the blank story. It was completely based on my like thing. Since in school I was the eco club like head, so I was given the task of solid waste management ka campaign create karne ka. So I had written like the teacher in charge gave me, and I had written in 6 to 7 lines the actions that I took for conducting the drive. I assembled the students and how I narrated, gave them the guidelines and what was the conclusion of that drive and how was I rewarded. So this was my blank story, all based on my personal experience. Exactly, it's all about the personal experience. और मुझे लगता है कि 12 पिक्चर आपकी रियल स्टोरी होती है, जो वाकई में एज ए हीरो आप कुछ करना चाहते हो, जो डिफरेंट क्रिएट करना चाहते हो, और ऑब्वियसली अगर वो रियल हो जाए, आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू आती है, तो दैट्स क्रिएट रियली अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन ऑफिसर्स. ओके, लेट्स कम टू द इंटरव्यू पार्ट, बिकॉज ये बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड रहा होगा और आप रिपीटर्स थे, तो लाजमी सी बात है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर के ऊपर एक प्रेशर ज़्यादा होता है कि हाँ इसको एग्जैक्टली इस बार देखना है मेरे को, क्या पोटेंशियल है, कैसे है, कई चीज़ें. तो हाउ वाज योर इंटरव्यू पार्ट, कितना लंबा चला एंड कुछ इंटरेस्टिंग मोमेंट्स? सर इंटरव्यू तो बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू था सेकंड डे, दे हैड कॉल्ड मी कि तुम्हारा लास्ट इंटरव्यू है फॉर द डे, एंड आई वाज ऑल ड्रेस्ड अप. मेरे को 1 घंटा उन लोगों ने वेटिंग रूम में बिठाया, एंड व्हेन आई वाज गोइंग अप there was a sir coming down. I didn't knew he was my interviewing officer only. I didn't greet him, nothing. I went up and I saw the room was empty. So when I came down, the sir, the helper who was there, he said कि आज नहीं interview, sir चले गए. And then I realized that the person who was coming down, I didn't greet him, nothing, and he was my interviewing officer. So अगले दिन after the GTO, exact after GTO, I was in my GTO dress. I went for the interview. And मेरे को सब कहते हैं कि रिपीटर्स हैं, तो obviously they will take more time to judge you and all. But मेरा interview got end in 20 minutes. Okay. Max 20 minutes. I don't remember. And I think sir ने पलटा भी नहीं वो PIQ वाला page. He was asking from first page only about my like my education background, and since I am from Indraprasth College, कि girls college ही क्यों? What are the drawbacks? What are the positive feedbacks, क्या change किया है तुमने इस attempt में? And then in last, to check a bit GK, he asked me about the capitals of neighboring countries. Yes sir. तो इट वॉज वेरी बेसिक इंटरव्यू एक्चुअली. हाँ, ये चीज़ हमें पता चलती है जब मैं आदित्य का इंटरव्यू ले रहा था, तो आदित्य वो शेयरिंग कि सर माई इंटरव्यू पार्ट वॉज जस्ट 10 मिनट्स, 8 to 10 मिनट्स सर. उनको ज़्यादा क्वेश्चन करना ही नहीं था, बिकॉज इट वॉज 7th अटेम्प्ट था सर. और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मैं डेली यहाँ आता हूँ और बैठता हूँ, वो भी कॉन्फिडेंट सामने से. और एग्जैक्टली फिर उसके बाद उन्होंने 1-2 क्वेश्चंस केवल किए और उसका उन्होंने बेहतरीन जवाब दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा बस आदित्य इस बार कोई टेंशन की बात नहीं है. एग्जैक्टली मैं कल इंटरव्यू ले रहा था TS48 का, राघवेंद्र का. तो
राघवेंद्र वाज शेयरिंग द एक्सपीरियंस कि सर जो है मेरा इंटरव्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली बच्चा है वो, अभी जस्ट 12th पास किया उसने, तो ठीक है बच्चा तो है ही वो, तो थोड़ा सा बच्चा क्या होता है प्रिपेयर्ड होके जाता है, उसको एक स्टाइल एक शैली होती बोलने का, जब भी एज पर माई कंसर्न एज आई नो सर, तो मतलब वो अपना एक स्टाइल में हर प्रश्न का जवाब दिया जा रहा था। तो थोड़ी देर में वो इरिटेट हो जाते हैं कि यार तू हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट प्लान तरीके से बना रहा है, तो मतलब क्या इसकी तैयारी करके आया हुआ है? तो इसे बोलो नो सर। तो उसने कहा ठीक है अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फिर उनसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चन, काफी डीप डिफरेंट एनालिसिस, बट अब वो बंदा जब तैयार ही है पूरी तरह से, तो आप कुछ भी पूछ लो तो इंप्रेस करना ही करना है। और अंत में इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है उसको बोलता है एग्जैक्टली कि भाई कल जीटीओ बढ़िया से देख लेना, आप श्योर शॉर्ट रिकमेंडेड हो। सेम थिंग हैपेंड विद प्रिंस आल्सो, जो गॉट रिकमेंडेड फॉर द लास्ट एनडीए। उसके में भी जो उसका एक्चुअल इंटरव्यू चला था, फर्स्ट इट वेंट फॉर 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद उन्होंने पीआईक्यू फॉर्म साइड में को पूछा कि आपने कोचिंग करी है कि नहीं, तो ही सेड यस सर आई हैव डन कोचिंग। फिर उसके बाद से व्हाट द इंटरव्यूइंग ऑफिसर डिड वाज कि पीआईक्यू से फिर एक भी क्वेश्चन नहीं था, इट वाज रिगार्डिंग कि गर्ल्स की एनडीए जो एंट्री कंपलसरी इसको लेकर के 15 मिनट तक एग्जैक्टली थोड़ा स्ट्रेस करते हैं, डिफरेंट जोन में ले जाते हैं कि एग्जैक्ट पर्सनालिटी फाइंड आउट करना है हमको यहाँ पे। एंड थी वाज सेइंग कि सर ये कंडीशन क्रिएट हुई, और ऑब्वियसली जब मैं कॉन्फ्रेंस राउंड में था, बिकॉज ही वाज अ प्रेसिडेंट, तो जब मैं कॉन्फ्रेंस राउंड में गया तो वो भी उठ के चले गए थे। मतलब ऐसा उनको कॉन्फिडेंस था कि ये बंदा आ रहा है, ये तो श्योर शॉट है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, मेरा जजमेंट क्लियर है, आप लोग देख लो। तो उन्होंने बोला कि कॉन्फ्रेंस भी ठीक ठाक हुई, 8 से 10 मिनट्स तक कॉन्फ्रेंस हुई, और उसके बाद फाइनली वो बंदा रिकमेंड हुआ। बिकॉज टीएस एंट्री इज अ टफ एंट्री, और उसमें जैसे आपका एनडीए ऑब्वियसली गर्ल्स के लिए, सेम टीएस का भी वही स्टेटस रहता है रिकमेंडेशन को लेके, बट वो इतना मैच्योर, इतना बैलेंस छोटा सा बच्चा कि मतलब उसको लेना ही लेना था, कोई क्वेश्चन मार्क था ही नहीं इस बात को लेकर के। ओके, इंटरव्यू पार्ट तो बहुत चिल गया, जैसे आपने बताया कि 20 मिनट्स में केवल पर्सनल डिटेल्स ली गई होंगी, इंटरेस्ट लेवल समझा गया होगा, और बेसिक जीके उन्होंने समझा होगा कि हाँ आप कितने अवेयर हो, कितने अलर्ट हो चीज़ों को लेके। जीटीओ का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बार? बिकॉज ऑब्वियसली आउटडोर टास्क एक फोबिया भी रहता है, इवन आप रिपीटर थे, आप तो करके आए थे, तो ऐसा कुछ नया नहीं रहा होगा, बट क्या कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा कि बस सब कुछ वैसा ही चला? सर बिल्कुल जी, लाइक मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट में मेरे को लगा था सारा गेम जीटीओ नहीं बदला है, बिकॉज पिछली बार में आई वाज लाइक अ पैसिव ऑडियंस की समझने में ही टाइम चला गया, इतने में एक्टिविटी खत्म हो गई थी पिछली बार। तो इस बार आई वाज लाइक अब तो टाइम नहीं है, सो माय मेन फोकस इस बार वाज कि जीटीओ ही इम्प्रूव करना है, बाकी तो आई वुड मैनेज। सो फर्स्ट टास्क, एंड मेरे को जो ग्रुप मिला था ऑल वर लाइक स्क्रीन्ड आउट, एंड आई वाज अलोन कॉन्फ्रेंस आउट इन दैट ग्रुप। ओके, तो so there was again groupism बन गया था कि इसे तो सब आता है, so literally there was like 9 were on one side and I was on one side, but like first task is of group discussion. So sir gave us 2 topics. First one was ki which country according to you is creating problems in international relation, that turbulence, is it USA, China या फिर Russia? And second one was related to कुछ business and private and public वाला, वो मेरे को बिल्कुल समझ ही नहीं आया। I was like ये हुआ ना topic, फिर I won't able to speak, so I tried to create that influence कि सब first वाला ही चुने, because second वाला I was like ये तो कभी सुना ही नहीं मैंने। तो फिर I tried to create that influence कि ये लेते हैं because it is affecting geopolitics, we all must be reading newspaper, तो सब, तो sir had to literally vote कि कौन सा लेना है, because there was 50-50 chances. So the first one topic went, so we discussed on that, तो वो तो मेरे को आता था because that was all about geopolitics, and आप newspaper पढ़ते हो so you will get, and so the GD went well. And second topic obviously sir gives, it was about women empowerment, so that was pretty basic topic. So the next task is of the group planning exercise. So in that also it was pretty basic, and I, because literally एक point के बाद झगड़ा हो गया था, and sir was like I'm going now because you are not listening to me. जब मैंने बोला है कि एक एक करके बोलो, तो सब एक एक करके बोलो, don't pounce on each other. फिर भी वही हो रहा था हर 5 मिनट बाद, and sir was like, उनकी शक्ल से दिख रहा था he's done with us. तो फिर sir stopped us after 15 minutes and sir asked one to narrate. So I asked my group members could I narrate, and also they all agreed. So I narrated the plan. Very nice. Yes sir. Then final Yes sir. keep on lecture पे आते हैं हम लोग। Okay, so lecturate में तो I was the first person to like hand over the card, and before lecturate what sir does is कि you have to introduce yourself, tell your name, your profession, your father's profession, your mother's educational qualification. So we were 11 people, तो उसमें time लग रहा था, and sir had said me कि जब तुम्हारा introduction हो जाए take a card and go to that shed. So I went there, and my topic that I got was one nation, one tax, then South China crisis,
public private partnership, and fourth I don't remember. So first one was pretty clear कि एक one tax one nation वाला एक GST, all it was pretty prepared. तो मेरा 30 सेकंड में हो गया था कि हाँ मेरे को ये बोलना है. But when I listened, फिर मैं आ गई 3 मिनट बाद, because I had heard the whistle of some other group, and sir asked me कि तुम क्यों आई हो? I didn't whistle. So I had to explain by mistake. So I eventually got approximately 6 to 7 minutes to prepare lecture, क्योंकि सबका introduction ही चल रहा था one by one. Yes sir. So I went there, I delivered like exact 3 minutes without hesitation and all, and then I sat. So that was the lecture. आउटडोर टास्क कैसे रहे, लाइक पीजीटी या जीटी? बिकॉज जैसे आपने कहा स्टार्टिंग से ही कि स्क्रीनिंग ज़्यादातर फ्रेशर्स थे उसमें एग्जैक्टली, और स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स थे, तो कैसा रहा ओवरऑल? क्योंकि ग्रुप कोऑपरेशन का एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है ड्यूरिंग पीजीटी, या हम एचजीटी की बात कर लें, एफजीटी की बात कर लें, तो हाउ इज योर पीजीटी? पीजीटी कैसा रहा, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क? Progressive group task में like there were only 2 to 4 people who were speaking and giving ideas. Rest were like बीच में बोलना. They were not continuous players in that. But I tried कि अगर मेरे को idea नहीं आ रहा, I at least take that rope, take फट्टा and help the group proceed आगे. Because there were times कि मैं blank हो रही थी, so I simply whenever I got a hint, like ये बंदी ये कहना चाह रही, but the group is not listening her, but she has a very good idea. So I tried to take over that idea and try to implement that. So that ways I did the PGT, and HGT में it became more convenient to like implement because not many people were speaking. So ओके, सिटी में कमांड टास्क में कितने लोगों ने आपको बुलाया? Sir, it is usually said कि कमांड टास्क में आपको ज्यादा लोग बुलाते, तो it's very good, but eventually मेरे को सिर्फ एक ही ने बुलाया था. As I told कि वहाँ पे अलग ग्रुपिज्म हो गया था. चलो नो इशू. चलो, अब इस दौरान ऑब्वियसली आपका जीटीओ से भी एक इंटरेक्शन हुआ होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपको कमांड टास्क मिला, आप रिपीटर के तौर पे आए होंगे, तो कैसा था उस समय जीटीओ का जो ओवरऑल रिएक्शन था? क्या कन्वर्सेशन हुई, क्या कम्युनिकेशन हुई इस दौरान आपके? Because for command task I was the first person who was called by sir, and फिर मैंने पहले सर को देखने से पहले there were like equipments जो दिए हुए थे, and वहाँ पे एक ट्रायंगल था. मैं तो वही देख के खुश हो गई कि कुछ तो किया, like something unique equipments रखे हैं मेरे लिए. So sir asked me like basic questions कि army ही क्यों, you know ना कितना tough है like job in army, why girls in army, and like then I was asked what your father does. As I said, he did property dealing, so he asked certain questions कि फिर तो बहुत पैसे होंगे and all. The conversation got ended. Then he asked me to get 2 subordinates. So I called people who were actually very good in like giving ideas and implementing those. And then command task में I was given a triangle, the fatta and the balli. So rope was not there, and there was only one level that I had to cross. And there were 3 obstacles, so I could do one, I could do the second one, but in third one ideas ही नहीं आ रहे थे, and sir was again and again trying to give hint, but मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था सर कहना क्या चाह रहे हैं. And so फिर I tried to do something, sir कहते ऐसे नहीं होगा, hidden trial नहीं चलेगा, आता है तो करो. So फिर I again got nervous, and then I tried to implement another idea. Sir कहते तुम army में जा रही हो या circus में जा रही हो. So it was kind of very pressure like creating situation. फिर sir ने asked me to switch on another like path, so I did one obstacle, and फिर sir ने कहा leave, you may go. So that was the command task. चल, फाइनली कॉन्फ्रेंस राउंड था, और कैसा रहा आपका कॉन्फ्रेंस? So my conference, I was chess number 20 and we had 38 people, so I was like the middle person. तो फिर like I was made to wait 5 minutes outside, and I was called, my number was flashed. I went inside, my conference went for 1 to 2 minutes max, and फिर sir asked me about the rating की rate your performance in psychology, GTO या the IO, and when I rated interview में 8.5, he asked me कि why 8.5. So I said sir my like I felt कि मेरा कहीं ना कहीं GK is lacking. तो सर आज क्या ऐसा पूछा सर ने. So I asked कि so I told कि सर by mistake I spoke the capital of UAE wrong. मैंने गलती से दुबई बोल दी थी. सर said कि अब क्या सर्च करके आए हो.
So I said, sir, Abu Dhabi capital है. Sir ने कहा very good. अब क्या चल रहा है Abu Dhabi में? I was like, so oil crisis. Sir कहते tell me something about sports. मेरे को आ ही नहीं रहा था. और पिछली रात ही हमने क्रिकेट देखा था उस टीवी पे बैठ के, and I was like, क्रिकेट चल रहा है, but I was not sure. So sir ने कहा okay, you may leave. तो बस यही था छोटा सा. फाइनली कितने लोग रेकमेंड हुए टोटल बच्चा वहाँ Sir, से? out of 38, 7 got recommended. दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक ये अपने आप में गुड नंबर है। तो आपका चेस्ट नंबर मिडिल में था, तो अनाउंस कितने पोजीशन के बाद हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस नंबर पे? सर ने हमसे पूछा था कि कैसे अनाउंस करना है, हमने बोला रैंडमली. सर ने कहा नहीं, मैं सीक्वेंस वाइज करूंगा. तो फिर फर्स्ट चेस्ट नंबर 2 got recommended, chest number 20, sorry no, chest number 10 and then 20, so I was the third person. So I never thought कि army would be something, क्योंकि बचपन से ही मम्मा पापा ने बोला था सिविल सर्विस में जाना, like सबके माँ बाप कहते कि सिविल सर्विस IAS बनो, लाल बत्ती and all. So मैंने ह्यूमैनिटीज भी इसीलिए ली थी कि I'll crack IAS, but I don't know how पिछले 1 साल से my everything has changed after getting recommended. Even in medicals I got to interact with such nice people from IMA, from all the bhaiyas from IMA and even NDA batchmates. And even when I went for my AMB, Appeal Medical Board in Delhi base hospital, there also I spent 5 days and I got to interact with so many good people. तो पिछले 1 साल से यही चल रहा है कि इतने अच्छे लोगों से बात करने को मिल रहा है, and my life has like completely changed. From introvert, I used to not speak in school, एक अक्षर नहीं बोलती थी मैं, and now I do not stop. So everything has changed. That's really great thing. अच्छा, सारे प्रश्न मैं ही करता रहा, श्रेयांश सर ने कुछ पूछा ही नहीं एग्जैक्टली। लंबी जर्नी होती है सर, कुछ प्रश्न जो आपके हों। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो श्रेया के बारे में ये रहेगा, जब व्हेन शी स्टार्टेड द क्लासेस, तो कुछ दिन के बाद से ही मेरे और कैप्टन सर दोनों के ज़बान पे ये नाम था कि हाँ श्रेया मान इज द गर्ल जिसके अंदर पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है. एंड द रीजन इज दैट कि इस एज में, बिकॉज शी इज आल्सो ए वेरी यंग गर्ल, इस एज में द वे ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत जल्दी ग्रेजुएशन स्टार्ट, एग्जैक्टली द वे ऑफ कम्युनिकेशन, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग हरसेल्फ वाज सो नाइस. वे बोथ ऑफ अस वर रियली श्योर कि इसका रिकमेंडेशन तो कंफर्म है. एग्जैक्टली. यहाँ के 2 इयर्स के क्या स्टेटस रहते थे साइकोलॉजी पार्ट पे? साइकोलॉजी पार्ट वाज आल्सो फाइन. आई थिंक आई टुक हर इंटरव्यू एज वेल. आई थिंक इट वाज इन मंथ ऑफ अप्रैल और व्हाट. हां, सो इन दैट आल्सो शी परफॉर्म्ड क्वाइट वेल. So I gave her some tips and tricks or whatever. I'm not really remember. It was a long time ago. But ये बात थी कि हाँ, her communication was quite good, her confidence level was quite good, और ये बात उन्होंने confirm show करी, 2 बार उन्होंने prove करी हमारी. पहली बात तो ये कि जो हम लोग कई वीडियोस में बोलते आए हैं कि किसी भी इंसान को भले उसको डिफेंस में जाना हो ना जाना हो, एक बार उसका एसएसबी का एक्सपीरियंस लेना चाहिए. एंड शी इज लाइव एग्जांपल कि हाउ इट चेंज हर लाइफ, कि 1 साल के अंदर द गर्ल हु वाज एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज सिंस चाइल्डहुड, डिफेंस का एक्सपीरियंस मिलने के बाद से वो जो जज्बा अंदर आ जाता है. एग्जैक्टली. नाउ इट्स वेरी डिफरेंट एक्चुअली. हाँ, मैंने तो पहले श्रेया से इंटरेक्ट नहीं किया है, बट जब आपका विजुअलाइजेशन थोड़ा मैं फील कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, इवन इन्होंने भी जो भी बोला. एंड एग्जैक्टली आई लव वन थिंग ग्रेट अबाउट यू इज कि यू आर टू ऑनेस्ट, जेन्युइन, ओरिजिनल एंड रियल. एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग व्हाट एग्जैक्टली वी नीड इन द डिफेंस फोर्सेस. तो ये सबसे बड़ी चीज़ है बच्चा, इसको आप बनाए रखना, यही ऑनेस्टी, यही जो आपका ओरिजिनल पना है, और बिल्कुल दिल से जो साफ बोलते हो, साफ आप कहते हो. आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि तभी आप अपने रियल पर्सनैलिटी ट्रेड्स को किसी के सामने रख पाते हो, और यही सबको इम्प्रेस करता है. तो मुझे लगता है कि ये बहुत कमाल की चीज़ है बच्चा. एंड आई थिंक लाइफ में हर चीज़ सीखने के लिए होती है, एंड वी गेट एवरी टाइम लॉट ऑफ जो है एक्सपीरियंसेस हियर, बिकॉज मैं ऐसे ही बच्चों से जो है इंटरेक्ट करता हूँ. बच्चा लगातार जो 7-7 बार जो है आउट हो रहे हैं, 8th अटेम्प्ट में जाके रिकमेंड हुए. सोचिए उनके लिए कितना चैलेंजिंग होता होगा, परिवार को सपोर्ट ना हो वहाँ पे, क्योंकि समाज नहीं एक्सेप्ट करता है. समाज तो यही लगाता है कि नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा. बट पेरेंट्स वो होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, नहीं तेरी कोई गलती नहीं है, यू आर गिविंग द बेस्ट. बिकॉज अभी जैसे मैं बच्चे से बात कर रहा था मनीष त्रिपाठी से, तो 6th अटेम्प्ट में गॉट रहे, पहले अटेम्प्ट में वो बच्चा कॉन्फ्रेंस आउट होता है, फिर लगातार वो स्क्रीन आउट हो रहा है. मतलब आप सोचो कितना डिप्रेसिंग हो सकता है एक कैंडिडेट के लिए. तो फाइनली वो TS48 में जाके रिकमेंड होता है. अभी 150 उसको एनडीए भी अपीयर होना है, एनडीए में वो रिकमेंड हो जाएगा. तो ये बहुत बड़ी चीज़. मैंने पूछा यार ये बता, तू 4-4 बार स्क्रीन आउट हुआ, 1 बार कॉन्फ्रेंस आउट, तो तेरे को ये लगा नहीं कि क्विट कर देना चाहिए, मेरे बस का है ही नहीं लगता है? कहा नहीं सर, मेरे पापा ने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, यू आर डूइंग बेस्ट, बिकॉज आप रिटर्न क्रैक कर रहे हो, तो आप में पोटेंशियल, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. हाँ, एसएसबी के जो पैरामीटर्स हैं कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी रह जा रही है. तो फिर सर मैंने उस चीज़ पे काम किया, खुद को बेहतर किया, और फाइनली इसमें मैं रिकमेंड हुआ. सर एक और मैसेज जो इनकी स्टोरी से निकाला जा सकता है, पहला तो ये कि कुछ लोगों को लगता है
कि या तो डिफेंस के बच्चे डिफेंस ब्रैट्स हैं या फिर वही बच्चे जो बचपन से डिफेंस के बारे में जुनून लेके जा रहे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, बट इट इज नॉट सो। आपकी पर्सनालिटी चेंज करना और अपने आप में इंप्रूवमेंट, अगर आपके अंदर चाहत है कि आपको यही करना है तो काफी ज्यादा पॉसिबल है। शी हैज द फाइन एग्जांपल फॉर दैट। एंड ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स को भी ऑब्वियसली बहुत बहुत मैं कहना चाहूँगा कि सर धन्यवाद, बिकॉज वो इस लेवल का आपको सपोर्ट दे रहे हैं। नहीं तो एक माइंडसेट बना हुआ है कि केवल जो फौज की बच्चियां हैं वही फौज में जाएंगी, क्योंकि उन्हीं के पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है वो लीग से हट करके आपके मॉम एंड डैड दोनों ही सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। चलिए, थैंक यू सो मच, इट वॉज लवली इंटरेक्शन विद यू एंड विश यू गुड लक फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. ओके बच्चा।